Namaste. Welcome to Pahadi Panchi Fly Again. Pahadi Panchi Phir Ud Chali. This particular video is all about travel. We will be traveling to Basantpur, the kingdom of the Shahs, the Ranas, and before that, of course, Lichavis and Mallas. Of course, there are many architectural wonders because this place is a World Heritage Site recognized by the UNESCO. This is one of the best way to start our trip to Kathmandu Valley. So let's go, and I would be covering few of the places. One will be Taleju Temple, we'll see that, and Kumari Temple as well. Then we also have the Shwet Bhairav and the Kal Bhairav. Also Hanuman Dhoga Palace outside area, and also would like to show you the museum. But all these places would be just the outer area would be covered because there are some places here where videography is prohibited until and unless we take some permission. So we have covered the outer areas of Basantpur, the Kathmandu Darbar Square. So enjoy the video and check out all the wonderful places where you can click photographs and create your memories with your family, or if you're alone you can do a lot of selfies there. So let's watch and enjoy Kathmandu Darbar Square, once kingdom of kings called Basantpur, and today it is a UNESCO World Heritage Site. So enjoy. Namaste. नमस्ते। और आज हम चलेंगे एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो यूनेस्को द्वारा सम्मानित किया गया है। एक ज़माने में इसका नाम बसंतपुर हुआ करता था, जो महाराजाओं का गढ़ था, क्योंकि लिच्छवी, मल्ल, शाह और राणा इन सभी राजवंश ने यहाँ पे राज किया है। और आज ये कहलाता है काठमांडू दरबार स्क्वायर। हालांकि हमारा विजिट एक टूर रहेगा, बाहर से ही हम कुछ महत्वपूर्ण जगहों को देखेंगे क्योंकि वीडियोग्राफी भी अलाउड नहीं है, और कुछ जो है एरियाज जहाँ आप विजिट कर पाएंगे, जैसे आप श्वेत भैरव शाम के समय को उनका दर्शन कर सकते हैं, काल भैरव आप किसी भी समय उनका दर्शन कर सकते हैं, तलेजू टेम्पल है जो एक देवी का मंदिर है, एक पर्टिकुलर समय में ही ओपन रहता है, तो आप बाहर से दर्शन कर सकते हैं। तो म्यूजियम है, टिकट है उसके लिए भी, और ये सारे टूर के लिए भी टिकट है। हनुमान ढोगा पैलेस है, महल है, उसके बाहर ही हनुमान जी की एक मूर्ति है, आप उनके भी दर्शन कर सकते हैं, तो जाइएगा जरूर। और बहुत सारे फैमिली फोटोग्राफ पॉइंट्स है और एक बहुत ही सुंदर टूर है। आई एम श्योर आप जब आएंगे नेपाल काठमांडू वैली तो काठमांडू दरबार स्क्वायर जरूर जाइएगा। नमस्ते। फॉर अ हेरिटेज वॉक और अ वॉकिंग टूर it is advisable that you have breakfast and move by 9 or 10 and reach the दरबार स्क्वायर on time। क्योंकि ये एक हेरिटेज टूर है, वॉकिंग टूर जिसे कहते हैं, काफ़ी चलना पड़ेगा आपको, और सुबह का समय बेस्ट रहता है। जल्दी आप नाश्ता करके होटल से लगभग 9-10 बजे निकल जाइएगा और पहुंच जाइएगा दरबार स्क्वायर। एंड दिस इज प्लेस इज ऑल्सो कॉल्ड बसंतपुर दरबार स्क्वायर और हनुमान ढोगा पैलेस, also known as Kathmandu Darbar Square. Now there are many ticket counters within this premises, and you can buy the tickets. You'll also get some passes, and it is always advisable that you visit the museum before you go for a walking tour. At the ticket counter you can also ask for a local guide for a lifetime guided walking tour. टिकट खरीदना मत भूलिएगा, आपको कुछ पासेस और इंफॉर्मेशन ब्रोशर भी मिलेगा। वॉकिंग टूर जाने से पहले म्यूजियम जाना एक बहुत ही अच्छा आइडिया है, क्योंकि वहाँ आपको हिस्ट्री और बेटर समझ में आ जाएगी। टिकट काउंटर्स चारों ओर देख पाएंगे आप, और वहाँ पर आपको एक लोकल गाइड भी मिल जाएगा। गाइडेड टूर लोकल गाइड्स के साथ एक बेहतरीन एक्सपीरियंस रहता है। आफ्टर द हनुमान ढोगा पैलेस म्यूजियम, it is the Kumari Ghar that will catch your attention. It is also called Kumari Temple, where the living goddess resides, and she is an incarnation of Taleju Bhavani, and I'll also be showing you that temple which is located nearby. An interesting fact is that during the earthquake 2015, this particular architectural building stood tall as it stands today.
तो ये है कुमारी घर, जहाँ पर जीवित जो देवी है वो रहती हैं, और ये तलेजू भवानी की एक रूप है, उनका ही स्वरूप है। और अर्थक्वेक, जब भूकंप आया था 2015 में, तो ये जो आप ढांचा देख रहे हैं ये ज्यों का त्यों था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हालांकि मैंने अपनी लिस्ट में इंक्लूड तो नहीं किया है इसको, लेकिन ये है शिव पार्वती टेम्पल। सो दिस इज़ अ टेम्पल डेडिकेटेड टू Shivji and Parvati ji, but it is also a tantric related temple. In this town of Basantpur, every temple is operational, and during festivals they come alive. The locals here are all over, and they own shops. There are markets around the Darbar Square, which is part of the Basantpur area. ये जो जगह है बसंतपुर एरिया, ये लोकल्स के द्वारा चलाया जाता है। शॉप्स है, मार्केट्स है, दरबार स्क्वायर के आसपास त्योहार मनाए जाते हैं। ये सारे जो मंदिर हैं, ये त्योहारों के दिन बहुत सारे लोगों से भरे होते हैं। कैन यू सी दिस बिग विंडो? क्या ये बड़ी खिड़की आपको दिखाई दे रही है? यहाँ है श्वेत भैरव। दिस इज where Shwet Bhairav resides. This place comes alive during the Indra Jatra, and Shwet Bhairav's all the windows are open during that festival. ये हैं श्वेत भैरव, और इंद्र जात्रा में ये सारे जो खिड़कियां हैं ये खोल दी जाती हैं, ताकि जो डिवोटीज हैं, भक्तजन हैं, वो श्वेत भैरव की दर्शन कर सके। इंद्र जात्रा इज वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन काठमांडू। नेक्स्ट टेम्पल इज एन ओपन टेम्पल। दिस इज द काल भैरव टेम्पल। इट इज सेड दैट इट हैज बीन कार्व्ड आउट ऑफ अ सिंगल स्टोन। ये है काल भैरव मंदिर, जो यदि आप ध्यान से देखेंगे तो एक ही पत्थर में काल भैरव जी को तराशा गया है, और ऐसा यहाँ माना भी जाता है। So as I said earlier, it was a kingdom once, but today it's a town. But the name hasn't changed. It's still Basantpur, and all these people you see are tourists, but the people who run this whole place are locals. They still live here, they have homes here, they have shops here. This is a town. It's a living heritage. It is a town where people live since centuries. सदियों से यहाँ लोकल्स रह रहे हैं। एक समय ये राजाओं का राज्य हुआ करता था, लेकिन आज ये एक छोटा शहर है, लेकिन नाम नहीं बदला है, बसंतपुर ही इसका नाम है। This is the statue of हनुमान जी। हनुमान जी की मूर्ति यही स्थित है, जो पैलेस की एंट्री डोर है। So this is the entry door of the palace, which is next to the statue. So this is the famous हनुमान ढोगा पैलेस। यही जगह कहलाती है हनुमान ढोगा पैलेस, जहाँ हनुमान जी की मूर्ति स्थित है। Now it's time to move to the most significant temple of this Basantpur Darbar Square or Kathmandu Darbar Square. That is the Taleju Temple, which is dedicated to Taleju Bhavani, also a form of माँ दुर्गा, the royal goddess of मल्ल डायनेस्टी। तो हम पहुंच चुके हैं तलेजू भवानी मंदिर। माँ दुर्गा का स्वरूप है ये, मल्ल राजवंश की शाही देवी, और आज भी इस पूरे बसंतपुर दरबार स्क्वायर, बसंतपुर शहर की सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है, जो सबसे ऊंचा है। अगर आप दरबार स्क्वायर घूमेंगे तो आप देखेंगे ये मंदिर सबसे ऊंचाई पर है। So Taleju Temple is one of the tallest building here in Darbar Square. Beyond the designated area, you can still explore Basantpur town. जो ये एरिया है, इसके आगे भी बसंतपुर शहर है, आप आगे जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। For more information, you can go to the ticket and information booth. ज़्यादा जानकारी के लिए टिकट और information booth जाइए। And I'm sure you'd also like to buy some souvenirs for your friends. And so Basantpur town, which also includes the Darbar Square, is an excellent souvenir and gift hub. And there are many shops run by the locals and a bargaining paradise. Shopping और bargaining दोनों साथ साथ चलते हैं, और बसंतपुर का एरिया और ये दरबार स्क्वायर का एरिया परफेक्ट जगह है। आप यहाँ पर souvenirs और गिफ्ट्स खरीद सकते हैं। UNESCO says humanity is supreme, and earthquake reality checks this fact.
यूनेस्को कहती है कि मानवता ही सर्वोपरि है और भूकंप इस बात को प्रमाणित करती है। इफ यू वांट टू चेक आउट द फेस्टिवल्स दैट्स ऑर्गेनाइज्ड हियर इन काठमांडू दरबार स्क्वायर, आल्सो नोन एज बसंतपुर दरबार स्क्वायर एंड हनुमान ढोगा पैलेस, you can check out the link of Nepal Tourism Board for more information. The link is also available in the description box. यदि आप त्योहार के समय यहाँ आना चाहते हैं बसंतपुर दरबार स्क्वायर में, जिसे हम काठमांडू दरबार स्क्वायर भी कहते हैं और हनुमान ढोगा पैलेस एरिया भी कहते हैं, तो प्लीज़ विजिट करिए नेपाल टूरिज्म बोर्ड वेबसाइट। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। विजिट नेपाल, एक्सप्लोर ह्यूमैनिटी। नेपाल दर्शन मानवता दर्शन का भी एक रूप है। नमस्ते।